रोशनी दी, गुड मॉर्निंग दीदी। Good morning. I am Vek. गुड इवनिंग दीदी। Good evening. हाउ आर यू दीदी? I am fine. Thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। दीदी, इज योर सीसी ऑन? Yes, my CC is on. दीदी, आपका सीसी चालू है? हाँ, Sorry, मेरा Sorry, CC Sakshi. चालू है. Sakshi Didi. For Hindi. दीदी, क्या आपका सीसी चालू है? Come again, please. दीदी, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ, मेरा CC चालू है. Good morning. Who is rest? I am rest. Who is rest? I am rest. Good evening. Good evening. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am all fine. Shivang, is your CC on? Yes, it is on. शिवांग, क्या आपका CC चालू है? हाँ, ये चालू है. Good evening, आभा जी. हेमा जी, sorry. हेमा जी, good evening. Good evening, Shivan. How are you, Hema Didi? I am fine also. You? Sorry, I am fine. And you? Sorry. sorry. I'm fine. And you? Sorry. पूरा ब्लैक दिख रही है रे बाबा. Sorry, Didi. Come again, please. I am fine. And what about you? Sorry, something is missing. Shivan, come again. How are you, Hema ji? Hema ji, I how am are you? fine. And you? Sorry. मैं नेक्स्ट आप एक और Okay. से किससे पूछ लीजिए फिर Okay, मैं I ट्राई will. करती हूँ. Okay, okay. Namrata Didi, good evening. Hello, Sivang. Good evening. How are you, Namrata Didi? Sivang, I am fine. Thank you. And you? Hema ji, I am also fine. हेलो नम्रता जी. Hema ji, how are you? I am fine. And you? Sorry. Sorry. Sorry, Namrata ji. Sir, I am fine. Thank you. And you? That's good. I am also fine. Okay. Who is rest? Roshni ji, how are I am you? done, Hema ji. Okay, okay. I am done. Who is rest? Sir, how are you? आप साक्षी Sir, से how बात are कर you? लीजिए.
साक्षी की डबल प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप अच्छा, उससे साक्षी जी, हाँ, साक्षी जी, हाउ आर यू? I'm fine, Didi. Thank you. And you? I am also fine. नम्रता, कैन यू टेल मी पिछली क्लास में क्या लिखवाया था? Yes, sir. किसी और को याद हो तो वो भी बता सकता है, जरूरी नहीं है कि नम्रता ही बताए। Three, first form, second form, third form. Sir, We in were chapter discussing. idiom we have written first one is here you are, that is Yelije, and idiom was work is barse, that is कर्मी पूजा है. अच्छा, शिवांग इसके डिटेल्स लिखवाए थे क्या? No sir, they are rest. ओके, थैंक यू। Sir, I was दोस्तों, absent in last class. ओके दोस्तों, हम जो भी इंटरेक्टिव इडियम सेंटेंसेस देते हैं, इंटरेक्टिव सेंटेंसेस और इडियम, उसके गर्भ में कुछ छुपी हुई बातें रहती हैं, तो उनको हम उसके साथ साथ लिखवाते चलते हैं। उसके लिए आपको हमने अलग अलग स्थान निर्धारित करवा दिए हैं, तो आपको उन स्थानों पर जाके उनको लिखना होगा। जहां तक मुझे याद है, मैंने वर्ब लिखवाए थे शिवांग पिछले क्लास में। क्यों साक्षी? No sir. साक्षी, अगर कुछ लिखा हो तुमने तो बताओ बेटा। सर, आपने पिछले क्लास में वर्ब नहीं लिखवाए थे, इसके पहले लिखवाए थे। जो इडियम दिया था उसमें से जो वर्ब निकलती हैं वो लिखी तो थी हमने। हेमा जी, आप बताएं जरा। सर वो कम, आना, जाना, ये वाले ना? हेमा जी, Sir, sir, have, has, had, first form, have, third form, had. चलिए कोई बात नहीं, मुझे संभवतः डबल मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मैं कर लेता हूँ। Namrata, is it visible to you? No, sir, it is not visible to me. Sakshi, is it visible to you? Yes, sir. It is visible. Visible. तुम नम्रता, तुम किसी और से पूछो यही सवाल। Okay. Shivang, if the whiteboard is visible for you, sir, is it right? Yes Namrata Didi, it is visible to me. शिवांग, Is it visible to you? Shivang, your voice was chopping beta. Come again. Sakshi Didi, is it visible to you? Yes, it is visible. Come again, Sakshi, your voice is chopping. Yes, it is visible to me. शिवांग, एक बार complete the process. साक्षी दीदी, क्या वह दिख रहा है? हाँ, यह दिख रहा है। साक्षी, आगे बढ़ाओ प्रश्न। रोशनी दीदी, is it visible to you? Yes, it is visible to me.
Complete the process, Complete the Sakshi. process, Sakshi. Thank दीदी you. दीदी क्या वह दिख रहा है? हाँ, वह दिख रहा है. हेमा जी, is it visible to you? हिमा जी हेमा डिस्कनेक्ट हो जी, गई good थी morning. रोशनी. गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए She was रोशनी जी। disconnected. नहीं नहीं रोशनी, सॉरी सर, she मैं was आ गई। disconnected. हाँ कनेक्ट हो गई सर, कुछ नहीं, नेटवर्क हम प्रॉब्लम से। हेमा जी हम बोल रहे हैं she was disconnected. She was disconnected. थैंक She was यू। यस disconnected. यस ओके सर। I think, Namrata, your mobile is not horizontal. That's why it is not visible to you. Please, everybody, put your mobile horizontal. सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो अपने मोबाइल को लेटा लीजिए, खड़ा मत रखिए, लेटा लीजिए. And double tap my face. So now it is visible to Double you. tap my face. Okay, Sakshi, what should be the verb for कार्य करना? the verb for कार्य करना, that is शिवांग से पूछ लो तुम. शिवांग. शिवांग, what should be the verb कार्य करना? साक्षी दीदी, the verb for कार्य करना should be work. अगला सवाल शिवांग तुम रोशनी अमृता दीदी जी। से पूछो. पता है कौन सा सवाल करोगे? यस सर। कौन सा बताओ पहले हमें. स्पेलिंग ऑफ वर्क। वेरी नाइस, थैंक यू. रोशनी दीदी, what should be the spelling of work? The spelling of work should be WORK. नम्रता गुड दीदी, मॉर्निंग। सर उसका सेकंड फॉर्म पूछेंगे. I will not tell you. The spelling of सॉरी। from should be WORK. दोस्तों, आपको जानकारी है कि आप अपनी स्क्रीन को काफी जूम कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं. अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं. ये जो बिंदी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको अपने हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? और कोई? कार्य, वर्क यानी कार्य ही होगा ना सर। चलो मैं बताता हूँ. इसको हलंत कहते हैं दोस्तों. क्या कहते हैं शिवांग? हलंत। अब यही सवाल तुम किसी और से पूछो. अमृता दीदी, what should we call that dot? Shivang, हिंदी Shivang, में पूछो बेटा, यहाँ अंग्रेजी महत्वपूर्ण नहीं है. दीदी हलंत कहते हैं. उसे क्या कहते हैं डबल बिंदी को? शिवांग, इसे हलंत कहते हैं. रोशनी, ये दो बंद को क्या कहते हैं? नम्रता दीदी, come again. Voice is chopping.
रोशनी, इसे क्या कहते हैं? Am I audible? हलंत बोलते हैं। हलन। Come again, रोशनी दीदी. हेमा जी, इस डबल बिंदी को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। इस डबल बिंदु को हलंत बोलते हैं। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। आभा जी और साक्षी जी, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? दीदी इस बिंदु बिंदु को हलंत बोलते हैं। दोस्तों, लेकिन चूंकि हम हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो यहाँ का उपयोग ये है कि अंग्रेजी में कई स्थानों पे आर को साइलेंट किया जाता है, रा को दबाया जाता है, और जहां जहां पे आर को साइलेंट किया जाता है या रा को दबाया जाता है, वहां हम इस तरह की दो बिंदी लगा दिया करेंगे, तो आप समझ जाइएगा। और ये हम अपने मन से नहीं लगाते हैं दोस्तों, ये ऐसा डिक्शनरी में भी ऐसा ही आपको मिलेगा। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखते हैं, शिवांग, क्या आपके पास डिक्शनरी है? No, sir. I am not having any dictionary. नम्रता, क्या आपके पास डिक्शनरी है? Yes, sir. I have a dictionary. कौन सी डिक्शनरी है नम्रता? Sir, Oxford. थैंक यू। यही दो सवाल किसी और से पूछो। रोशनी, सर हिंदी में? हाँ, हिंदी ही चल रही है अभी। रोशनी, क्या आपके पास डिक्शनरी है? नहीं, मेरे पास डिक्शनरी नहीं है। हेमा, सॉरी, साक्षी जी, साक्षी जी, क्या आपके पास डिक्शनरी है? नहीं दीदी, मेरे पास डिक्शनरी नहीं है। हेमा दी, क्या आपके पास डिक्शनरी है? हाँ साक्षी, मेरे पास डिक्शनरी है। Good morning, साक्षी दीदी. दीदी कौन सी वाली डिक्शनरी है? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। ऑक्सवर्ड्स नाम की डिक्शनरी है। एक चीज अभी मैंने नोटिस की दोस्तों, कि हेलो। हेमा जी से जब जब हिंदी में सवाल हो रहे थे, तो वो एकदम क्विक जवाब दे रही है, हाँ यस और सर, वो हमारी मुंह को इंटर्न पास में लाके काफी तेज बोल रही हैं। तो जो लोग ईयरफोन लगाए होंगे उनको कान में तकलीफ हो रही होगी, जबकि उनकी नहीं आवाज सर, बिल्कुल दूर से ही साफ। नहीं, जो ईयरफोन लगाते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। ये पिछली बार मैंने महसूस किया कि होता क्या है, आपको मेरी आवाज धीमी सुनाई दे रही तो आपको लगता है मैं तेजी से बोल रहा हूं। ये बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। और अभी आपका माइक ऑन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप विजिबल हैं, कि आप मेरी बात सुन रही हैं। तो ये चीजें, इसका मतलब यह है कि जब इंग्लिश की बात होती है तो चूंकि वो स्पष्ट नहीं होती है, तब आपको किसी और मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी जब हिंदी में हमने जानबूझ के सारे सवाल, अब मुझे पता है कि मेरी आवाज वहां जा रही है, ये स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है, और आपके चेहरों से भी समझ में आ रहा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो मुझे अभ्यास हो गया है, इसलिए मुझे समझ में आता है। आप वहां से हाँ बोले ना बोले, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि अभी बीच में आपसे कोई बात कर रहा था तो आपका ध्यान वहां चला गया था, ये भी मुझे दिखाई दिया। तो ये चीजें
मिस कर देती हैं जो क्लास में चल रहा है। तो अगर आप अपने फैमिली में बच्चों से, पति से तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों से अगर बोल के रखें कि बेटा इतनी देर तक मुझे डिस्टर्ब मत करो, जो दिखाए उसको जहां से मिले उसको काम अपना कर लो। एक्चुअली इसका मूल कारण ये होता है, माता जी लोग जो होते हैं, माताएं, वो अपने बच्चों को बहुत लाड़ देती हैं। तो जरा जरा सी चीज में वो माता जी के, मम्मी ये कहाँ रखा, मम्मी वो कहाँ रखा, मम्मी, अब पूरे समय मम्मी मम्मी मम्मी। तो आप एक एक डेढ़ घंटे के लिए बच्चों से निवेदन करें कि बेटा इस दौरान मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाना है। कौन आगे बढ़ाने वाला था? शिवांग, हेमा जी गुड मॉर्निंग। कोई भी बढ़ा दे। सर वर्क को बढ़ाना है ना? अब आगे का सवाल आप लोग, हाँ, What should be the second form of work? Namrata Didi, the second form should be worked. Sir, Roshan Didi, Roshan Didi, what should be the spelling of the second form? Sakshi Didi, what should be the spelling of second form? Yes. The सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क ऐसा बोल दिया Sec- करो। yes, sir. Second form of work. second form spelling should be WOR. देयर KED. दोस्तों, ये शब्द क्या आपके लिए नया है? नम्रता ने तो बोला नहीं। तो नम्रता बताओ, व्हाट इज दिस? ओके, नो प्रॉब्लम। दोस्तों, ये लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया हुआ शब्द है। लैटिन से अंग्रेजी में लिया गया है और इसका मतलब होता है सेम। तो जब हम सेम टू सेम नीचे लिखवाने वाले हैं कोई चीज को, तो हम दोनों तरफ लाइन खींच के या तो डिट्टो लिख देंगे या डू लिख देंगे। वहां डू का मतलब करना नहीं होगा, उसका मतलब होगा सेम टू सेम। हमने गांव के लोगों के मुंह से भी शब्द का प्रयोग सुना है, आप आश्चर्य करेंगे कि एक गांव वाला बोलता है, अरे तुम्हारे घाई लड़का तो हमारे गांव में भी है, डिट्टो तुम्हारे घाई देखा। हेमा जी, ये मैं जबलपुरिया भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। डिट्टो तुम्हारे घाई देखा था, या ऐसा प्रयोग करते पाए जाते हैं। शिवांग, तुम जो टी शर्ट पहने हो, डिट्टो ऐसे टी शर्ट मेरे पास भी रही पिछले साल, डिट्टो ऐसे ही रही। अब इन दोनों वाक्यों में दोस्तों आपको कोई गलती समझ में आई हो, किसी को तो बताएं प्लीज। हाँ निधि। सर डिट्टो। थैंक यू। और किसी ने नोटिस किया क्या? नहीं? चलो अब मैं बताता हूँ। सर मैंने सिमिलर,
मैंने दोनों वाक्य गलत बोले हैं जानबूझ के, ग्रामीण अंदाज में बोले हैं। सर सिमिलर या सेम जिस टू तरह सेम? से गांव वाले बोलते हैं, ठीक मैंने वैसा ही बोला, उनकी नकल की है। अब मैं उन्हीं दोनों वाक्यों को सही कर देता हूँ, लेकिन ग्रामीण भाषा में करने की अपेक्षा उसको शहरी भाषा में कर देता हूँ। अरे गुड्डू, तुम्हारे जैसा लड़का तो हमारे मोहल्ले में भी है, डिट्टो तुम्हारे जैसा दिखता है, बिल्कुल डिट्टो दिखता है तुम्हारे जैसा। दूसरे वाक्य को भी मैं सही कर रहा हूँ। शिवांग, ऐसी टी शर्ट मेरे पास भी रही, डिट्टो ऐसे ही टी शर्ट थी, डिट्टो। अब मैंने दोनों को सही कर दिया। इस बीच हेमा जी कुछ बोल रही थी जो कि उससे संबंधित बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने उनकी बात को सुना नहीं। मतलब सुना तो, लेकिन इग्नोर किया, क्योंकि वो कुछ और बोल रही थी, मैं पूछ कुछ और रहा था। और दोस्तों, बीच में अगर कहीं पे भी मेरी आवाज स्लो हो, लो हो, चॉपिंग हो, तो आप तुरंत अनम्यूट करके कम अगेन सर जरूर बोल दिया करें। अब हम अगली आपको एक फील्ड वर्क दे रहे हैं दोस्तों। शाहरुख खान की फिल्म में इस शब्द का एक गाने में प्रयोग किया है। किसी को अभी पता हो तो वो अभी बताए, और नहीं तो उसका वीडियो देख के स्क्रीनशॉट, उसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजिए। किसी को अभी पता हो शाहरुख खान की किस फिल्म में एक गाने में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड दे रहे हैं हम। ओके, योर टाइम इज अप। आप आराम से ढूंढिएगा, देखिएगा, चर्चा कीजिएगा भाई बहनों से, दोस्तों से, मम्मी पापा से, और जिसको भी वो मिल जाए वो यूट्यूब पे जाके उस गाने को प्ले करिएगा। फिर जैसे ये शब्द आए पॉज कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेजिएगा, या पूरा गाना भेज दीजिएगा, जैसी मर्जी। नीचे लिख जरूर दीजिएगा कि किस लिए भेज रहे हैं, लिख दीजिएगा कि डिटो के लिए भेज रहे हैं। अब अगला सवाल कौन कर सकता है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हो सकता है अगला सवाल हमने ना किया हो, आपको ना पता हो, इसलिए आप चुपचाप बैठे। चलिए मैं ही करता हूँ अगला सवाल। What should be the verb from dicto? चलिए मैं कर लेता हूँ। निधि, व्हाट शुड बी द अनदर वर्ब फॉर कार्य करना? The another verb for कार्य करना should be. शुड में इसलिए पूछते हैं I दोस्तों forgot. कि आपको पता हो या ना पता हो, शुड का मतलब ही होता है। चलो निधि पूछना, हु इज रेडी टू आंसर? Who is ready for answer? I am ready. Okay, Sivan, go ahead. पूछ लो निधि बेटा। निधि पहले अनम्यूट करो फिर पूछो। निधि, निधि जागो, गुड मॉर्निंग। Shivam, what should be the another verb for कार्य करना? Nidhi Didi, the another verb for car karna should be do. शिवांग, कार्य करने के लिए दूसरी वर्ब क्या है? क्या है तो गलत हो गया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए शिवांग? दीदी कार करने के लिए दूसरी वर्ब
एक्ट होना चाहिए। रोशनी दीदी, what should be the second form of the verb act? Come again, Shivang. What should be the verb for act? Second form of act. The second from acted should be acted. रोशनी दीदी, हिंदी also? रोशनी दीदी, Sir, Hindi. हिंदी also? Hindi no. बेटा वो पूछ रहा है कि हिंदी भी पूछूं कि नहीं। No. What, Namrata Didi, what should be the spelling of act? Sorry. Come again. Namrata Didi, what should be the second form of act? Roshni, the second form of act should be acted. Sakshi, what should be the spelling of second form of act? The second form spelling should be ACTED. Come again, please. The second form spelling should be ACTED. अभी हमारे साथ बोल रहे बेटा। द स्पेलिंग The spelling ऑफ, तुम्हारा सीसी ऑन है, लिखा हुआ पूरा आ रहा है? yes sir. द स्पेलिंग The spelling ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ एंड शुड बी। Please speak up. बेटा हम धीरे बोलेंगे तो समझ में आ रहा, हम उसको समझाना चाह रहे थे कि धीरे बोलने से क्या होता है। yes sir. चलो नम्रता, ये सवाल तुम किसी और से कर लो। Who is rest? I am rest. Nidhi, what should be the spelling of second form of act? The spelling of second form of act should be ACTED. That is act. Who is rest? Hema ji is rest and Roshni is rest. Okay. Roshni, what should be the third form of act? Nidhi Didi, come again. What should be the third form of act? The third form of should be Sorry for your pronunciation. निधि दीदी एक बार फिर से बोलिए। Sorry. Come again. You have to say come again. निधि दीदी come again. Come Okay. again. What should be the third form of act? The third form of act should be Look, whiteboard, Roshni.
Sir has written in whiteboard. Sorry, on whiteboard. Ask anybody else, Nidhi. The third Uh, form of okay. the third form of Okay, Rosni, keep patience. should be Hema ji, what should be the third form of act? The third form of act should be ed, ACTED. किसी और से पूछ लीजिए हेमा जी, आपका जवाब तो गलत है, लेकिन ये प्रश्न आप नम्रता जी से पूछिए। ठीक है सर, मैं नम्रता जी से पूछ लेती हूँ। What should be the third form act? Sorry, Hema Namrata ji. ji, what should be the third form act? Sorry, Hema ji. What should be the third form act? Hema ji, Yes. third form of act should एक be. मिनट नम्रता, Yes, जरा sir. हम निधि से बोलते हैं कि वो हेमा जी से पूरा सेंटेंस बुलवाए, एक एक लेटर। निधि बुलवाओ धीरे धीरे। Okay sir. Okay. हाँ, हेमा जी प्लीज बोलिए. What? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. आंसर What? बेटा, What should आंसर। Okay, sir, sorry. The the third form third form of of act act should be acted. acted. Okay, acted. ACTED. Okay. आपसे स्पेलिंग नहीं पूछ रहे हैं हेमा जी, Okay sir. नम्रता जी आपसे केवल तीसरा रूप पूछ रही हैं। Okay वो sir. स्पेलिंग The आपको किसी से पूछना पड़ेगा। Okay sir. हाँ. सर मैं एक बार आंसर को रिपीट कर दूं. पहले उससे क्वेश्चन करने के लिए आप कम अगेन की गुजारिश कर दें। ओके सर. निधि, कम अगेन. नहीं, निधि से नहीं, क्वेश्चन तो आपसे नम्रता जी कर रही हैं। Sorry, नम्रता looking on जी, the कम अगेन. सॉरी सर. नम्रता जी, कम अगेन. Hema ji, what should be the third form of act? The third form of act should be act. Sorry. Acted. The third form of act should be act. Act. बोलिएगा हेमा जी हमारे साथ। ए छोटा ए, A. का आधा क. का, क. ए की मात्रा, ट में ए की मात्रा. ड छोटा डा, ड छोटा ड. Acted. एक्टेड। Acted. थैंक यू। Acted. साक्षी जी. साक्षी जी. साक्षी जी मौजूद थे, आंसर देंगे, आप पहले पूरा क्वेश्चन करें। ओके सर. साक्षी जी, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म एक्ट? Sorry, हेमा जी. अभी निधि ने आपसे पूरा बुलवाया, वही बोलना। हाँ जी सर. व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म एक्ट? सॉरी। Sorry. बेटा इस बार तुम बुलवाओ यार, शिवान। हेमा जी,
What Sir, sir, what should be the third form act of act? उमा जी, एक बार शिवांग से सुन लीजिए ना, तो उसको भी इंग्लिश बोलने का एक मौका मिल जाएगा। Okay, sir. Okay, sir. what What should should be be the the spelling spelling of of the third form the third form of act? of act? उसका आंसर फिर बोलो क्या शुभांग? नहीं, आंसर तो वो बोलेगी जिससे आपने पूछा है। ओके सर. The साक्षी, spelling, what should be the spelling the third form of act? the spelling of third form, the spelling of third form of the act should be A B C E. साक्षी, अगला सवाल यहाँ से शुरू होता है। Sir, sir, what Nidhi di, what should be the verb of puja karna? The verb for उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, आप puja नम्रता से। karna should be worship. ओके, इट विल डू। कैरी ऑन। Namrata, uh, what should be the spelling of first form of worship? Nidhi, the spelling of first form of worship should be worship. Shivang, what should be the second form of worship? Namrata Didi, the second form of worship should be worshipped. Roshni Didi, what should be the spelling of the second form of worship? Sakshi Didi, The spelling of second form of worship should be worship. That is worship. Sorry. The spelling of second form of worship should be worship. good morning Roshni Didi. That is worship. Good morning Roshni Didi. Shivang, you should ask to another person. That is पूजा करना. That is पूजा करना.
Wrong, Rosalie, you can ask anyone. Spelling of BWST SSWE. Hema ji, what should be the third form of worship? The sorry. The spelling Sorry. third form of work shifted. Sorry, Amaji, please come again. Third form. Sorry. The spelling Sorry. Sorry. the third form of Worshipped. work shifted. The third form of worship should be the work. सर मुझे नहीं हो रहा है आंसर